Assalamu alaikum guys. I hope you are all fine. This is Danish Raza, online teacher for English. Grade 9, it's our 7th lecture in which we are starting a new topic. It's a poem. The title of the poem is Stopping by Words on a Snowy Evening by Robert Frost. In this poem we will discuss its main idea and summary. Focus on the title and the poet's message. Let's start. First of all, I want to tell you its introduction. Who is the poet? Robert Frost. Basically, Robert Frost was a famous American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874. March 26, 1874. He was an international poet. His poetry focused on the themes of nature and philosophical issues. He died in Boston on January 29, 1963. Well guys, keep in mind, Hampshire is a great collection of Robert Frost. He wrote this poem in 1922 and published his collection of Hampshire in 1923. It means the Stopping by Words on a Snowy Evening is written in 1922 and is published in 1923. Don't forget, Robert Frost won 4 Pulitzer Prizes and one of them won by Hampshire collection. One of them won by Hampshire collection by Robert Frost. And Robert Frost claimed that he wrote this poem in one night, in one sitting. He talked about his village, Franconia. He talked about his village in the poem Franconia. Now discuss the technical merits of the poem. It has 4 stanzas with 4 lines. We call it quatrain or riot poem. It has 108 words. One word has 3 syllables, which is promises. Promises. P-R-O, pro, M-I, me, S-E-S. Promises. Promises. 3 syllables. 19 words are 2 syllables. Examples are stopping, stopping, without, without. 88 words are monosyllables. It means single syllables. There is a repetition in the ending lines. We call it refrain. It is for emphasize. It is for emphasize, to focus on something, which is and must go before I sleep. And must go before I sleep. और सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना, बहुत लंबा सफ़र तय करना है, बहुत दूर तक जाना है. इस सेंटेंस को 2 दफ़ा दोहराया गया है. इसको हम रेफ्रेन कहते हैं कि किसी चीज़ पर एम्फेसाइज किया जाता है, फोकस किया जाता है, जोर दिया जाता है. वेल गाइस, फोकस ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम. लेट्स सी फर्स्ट सेंटेंस. Whose words these are? I think I know. His house is in the village though, and will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Woods जंगल, दो अगरचे, fill up भरा हुआ, स्नो बर्फ़ से. ये जंगल किसका है? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ. अगरचे इसका घर गाँव में है, वो मुझे यहाँ रुकता हुआ नहीं देखेगा, ना ही अपना बर्फ़ से भरा हुआ जंगल देखने आएगा. Number 2 stanza is, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse, छोटा घोड़ा, must think ज़रूर सोचना चाहिए, queer अजीब, to stop रुकना, without के बगैर, farm house near पास कोई घर होना, farm होना. ये मेरे छोटे से घोड़े को बड़ा अजीब लगता है कि जंगल के पास फार्म हाउस के बगैर रहना. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, वुड्स जंगल के दरमियान, फ्रोजन लेक मुंजमन झील के दरमियान, द डार्केस्ट इवनिंग द वीक, साल की तारीख शाम को, जंगल और मुंजमन झील के दरमियान साल की तारीख तरीन शाम को. लेट्स सी पैसेज नंबर 3. ही गिव हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डॉनिंग लेक. वो अपने साज की घंटियों को ज़ोर से हिलाता है, शेक हिलाना. टू आस्क इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि आया यहाँ रुकना हमारी गलती तो नहीं. द ओनली अदर साउंड द स्वीप, और आने वाली मज़ीद आवाज़ें तो बस, ऑफ इजी विंड एंड डॉनिंग लेक, हल्की हवा के चलने और बर्फ़ के नरम गालों की हैं.
And the last passage is, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Lovely, दिलकश, डार्क तारीख, डीप गाना, promises वादे, कीप जिनको कायम रखना है, माल्स मीलों, गो जाना है बिफोर पहले, स्लीप सोने से। यहाँ पर स्लीप से मुराद डेथ है, इंटरनल स्लीप है। जंगल, दिलकश, तारीख और गाना है, लेकिन मुझे वादे निभाने हैं, वादे पूरे करने हैं, और सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है, और सोने से पहले मुझे बहुत फासले तय करने, बहुत दूर जाना है। वेल गाइस, translation has been done. Now focus on its summary. Well guys, the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening has been written by Robert Frost, the well-known American poet. The main theme of the poem revolves around a traveler who is passing through woods which are lovely, dark and deep. The woods are so enchanting and awe-inspiring that the poet is compelled to stop his horse to stare at the beauty of his woods. It is one of the darkest evenings of the year. Snow falling is in full swing. Snowflakes are dawning. His pony horse is thinking it queer to stop by the forest without a farmhouse nearby. There is a frozen lake beside the woods. There are sounds of the harness bells of his horse and the wind blowing through the trees. The traveler is wondering about the ownership of the woods, that who is the owner of the wood. He probably knows the owner of the woods who is living in the village. The poet is deeply fascinated by the natural beauty of the woods. These lovely, dark and deep woods attract him so much, but he has much more important business to do. He has to go a long way before taking rest. Stopping by Woods is a famous poem by Robert Frost. Sleep in this poem is a symbol of everyday sleep, and also it is stand for the internal sleep, that is death. The poem is an excellent and beautiful piece of poetry. It is no less than a symbolic masterpiece by Robert Frost. Guys, नज़म बर्फ़बारी की एक शाम जंगल के पास रुकना, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं। जो नज़म का सेंट्रल आइडिया है, मरकज़ी ख्याल है, जो इसकी समरी है, जो इसका खुलासा है, जो इसमें मेन आइडिया कन्वे किया गया है, वो एक मुसाफिर के गिर्द घूमता है जो कि एक खूबसूरत तारीख और घने जंगल से गुज़र रहा है। जंगल इतना ही ज़्यादा पुरकश अपने अंदर है जितना पोइट इससे एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी जंगल इतनी ज़्यादा पुरकशिश है कि शायर को वहाँ पर रुकने पर मजबूर कर रहा है, और इतना इंतहाई बारोब है, यही वजह है कि शायर है वहाँ पर रुकने पर मजबूर हो रहा है। जंगल को देखने के लिए, इसकी खूबसूरती से महजूर होने के लिए वहाँ पर रुकने पर मजबूर हो जाता है। और गाइस, जंगल के किनारे एक मुंजमन झील भी है। मुसाफिर के घोड़े की सांस की जो घंटियाँ हैं और हवा के चलने की आवाज़ें आ रही हैं। मुसाफिर जंगल के ओनरशिप के बारे में, जंगल के मालिक के बारे में, इसकी मलकियत के बारे में हैरतज़दा होकर सोच रहा है कि इसका मालिक कौन है। शायद वो इसके मालिक को जानता है, जो कि करीबी गांव में रहता है। जैसे कि गाइस मैंने पहले बताया, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो उस वक्त जहाँ के रहते थे, उस गांव का इसमें ज़िक्र किया गया है, फ्रैंकोनिया का। शायद जंगल के कुदरती हुस्न से पूरी तरह महजूर है, उससे हर तरह से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है, पूरी तरह से मशहूर हो चुका है। ये खूबसूरत तरीक़ और गहरे जंगल से अपनी जानब उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन उसके पास करने के लिए इससे भी ज़्यादा अहम काम है, और उसे सोने से पहले बहुत मीलों लंबा सफ़र तय करके जाना है और अपने उन काम को, नामुकम्मल काम को पूरा करना है, अपनी मंजिल को तय करके। इस पोइम में, इस नज़म में जो नींद है, जो स्लीप है, इसके अंदर रोज़मर्रा की मामूल की नींद भी है, और इससे मुराद यहाँ पे अब्दी नींद भी है, जो कि मौत है। ये नज़म आला और खूबसूरत शायरी का एक आला नमूना है, एक मजमुआ है। ये किसी सूरत में भी एक अलामती शाहकार से कम नहीं है। जी तो गाइस, इस तरह से हमने इस पोइम के सेंट्रल आइडिया को भी डिस्कस कर लिया है, इसकी समरी को भी डिस्कस कर लिया है, इसके पोइट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेल, मूव टू इस क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम? द आंसर इज़, द स्पीकर इन द पोइम इज़ द हॉर्स राइडर। यानी नज़म में बोलने वाला कौन है? वो कौन है? हॉर्स राइडर है, घुड़सवार है। नंबर 2 क्वेश्चन, whom does the speaker refer to in the first sentence of the poem? पहले सेंटेंसा में शायर किसका हवाला देता है? द स्पीकर रेफर्स टू द ऑनर ऑफ द वुड्स, यानी जंगल के मालिक का हवाला देता है। नंबर 3 इज़, व्हाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर? जो शायर है, जो स्पीकर है, वो साल की जो तारीख तरीन शाम है उसमें क्यों रुकता है?
ही थिंक्स टू स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर बिकॉज द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। वो इसलिए वहाँ पे रुकता है, वो समझता है कि जंगल खूबसूरत है, तरीक और घना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर। घोड़ा क्यों बेचैनी से अपने मालिक की अगली हरकत का, नेक्स्ट मूव का इंतज़ार करता है। आंसर इज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट्स द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर एज देयर इज नो फार्म हाउस नियर बाय। They would not be able to get any food. They would not be able to get any food. He is also fearful that he might have made some mistake. घोड़ा अपने मालिक की अगली हरकत का बेसब्री से इसलिए इंतज़ार करता है क्योंकि वहाँ पर कोई फार्म हाउस करीब में नहीं है जहाँ पे वो रह सके, जहाँ पे उसको चारा मिल सके, खुराक मिल सके, खाने को कुछ मिल सके। वो इसलिए भी खौफज़दा हो सकता है कि उससे कोई गलती हुई हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ द स्पीकर इन द पोएम इज़ कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। वाई डज नॉट ही स्टॉप फॉर अ लॉन्ग टाइम टू एन्जॉय द नेचर्स ब्यूटी। जो स्पीकर है वो कुदरत की इस खूबसूरती पर फ्रीज़ा है, वो क्यों देर तक इसका मज़ा लेने के लिए, इससे इंजॉय होने के लिए रुकता नहीं है। जब उसको लाइक करता है, वो उसको अपनी तरफ ट्रैक करती है, इसके बावजूद वहाँ पे क्यों नहीं रुकता है। आंसर इज़ ही इज़ कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द डार्क डीप एंड लवली वर्ड्स बट ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू कीप, दैट इज़ टू स्टे, दैट ही हैज़ सम वर्ल्डली टास्क टू कंप्लीट और पॉलिश। Therefore he does not stop there for a long time. वो तरी घनी और खूबसूरत जंगल की खूबसूरती से मशहूर हो जाता है, उसमें आलुबा जाता है, उसको पसंद करता है, लेकिन वो वहाँ पे इसलिए नहीं ज़्यादा रुकता क्योंकि उसे दुनिया में अपने कुछ टास्क हैं जिनको उनको पूरा करना है, कुछ वादे उनको निभाना है, मीलों सफ़र तय करके वापस जाना है और इस दुनियावी काम को निपटाना है। वेल गाइस, वी हैव डन पोएम नंबर 8 ट्रांसलेशन, इट्स मेन आइडिया, समरी, question answers, and now it's your job. Do it at home. Stay blessed. Allah Hafiz.